Ishita? Hello, sir. Shall we Hi, how are start? you? I'm good, thank you. Awesome, 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 awesome. Okay, shall So we I was start? really looking forward for all good. I was really looking forward for this live because it's always good to actually interact with young minds. And though I am 30, but still I am quite young at heart because Yeah. I'll tell you about my journey. When you listen to my journey, you'll actually realize that I've always worked with youth. And first of all, congratulations that you are at such a position where you are meeting people like us and learning and inspiring more. So yes, all over to you. Okay. So, good One evening, thing is everyone. that one thing is that which language should I prefer? You can say you can take it as a bilingual event. That's all right. Perfect. Tell Okay. me. So, good evening, everyone. This live event is brought to you by the Wong Movement of Orion Square, and I'm your Wonger for the evening, Ishita. Now, Wong is voice of the new generation. Through this movement, we aim to connect young adults who are sensitive to the ills and challenges of the society. We aim to bring them and have them opinions formed, make informed decisions, and bolster their voices to bring the change that our society clearly needs. So, all the Wongsters, all the young minds watching this who want to be a part of our movement and help this planet be a better place can DM us or register with us in our website. Moving to the event, today we will be discussing on social justice initiatives and challenges in India. And to help us understand the issue better, we have our esteemed guest, Mr. Rahul Prasad. Now, Rahul is an entrepreneur, a social activist, a journalist, an author, and the credentials just go on and on. He founded Juvenile Care back in 2010 that works for the welfare of the underprivileged. He is also the founder of the Daily Report that focuses on bringing stories about the unsung heroes of our community. He has also authored a motivation handbook for the students called Youth from Bed to Ground. He has worked extensively in the rural area on various projects like education, gender sensitization, abuse, sanitation, etc. He is a Karamveer Chakra awardee and he is everything that we hope our youth eventually becomes. Thank you, Rahul, for joining us and welcome to the You're Wong welcome. platform. You're welcome. Thank you for having me here. So yes, I'm all over to you. Please ask. Okay. And yeah. So my first question to you that the person that you are with the credentials that you have by now you must have been having a successful corporate career if you had chosen that path, but you took the road not taken. So what was your motivation behind this? See, had you had asked me this question couple of years back, my answer would have been very different. But Okay. am I audible? I'm Yeah, audible, you are. right? Yes, you are to Okay. me. So, had you asked me this particular question a couple of years back, my answer would have been really different. But so summing up to one particular answer that why I chose this particular part, right? I chose this particular part. Why? Because there was a passion, there was an insect in me to do something good to society. At a very Okay. young age, when I was 17 and a half or 18 years old, something at a very personal level happened, struck in my life, which actually made me wonder that we would have a very lavish lifestyle, but we belong from a privileged family. But there are 65 or 70% of India which actually does not have what we deserve, what they deserve, what we have. And that is the time, that is the gap that we actually live in. This whole story is about this particular gap. All this while, all these years, I have been trying my level best to actually bridge that particular gap, right? So I started juvenile care when I was when I was 19-year-old, when I was in 2009 or 10. And that Mhm. particular time, it started as a venture for myself, a platform for myself to actually do something good in life, do something good with people. But gradually, I never realized that there are a lot of people, young minds like you, at that particular time who actually feel the same, but they do not have that platform. That is the time I realized that this is a time that we have to share that particular platform to people, right? So we registered it, and it all started going to one particular orphanage, teaching a child and coming back. But all this while, all these years, today we have more than 10,000 volunteers across country. And the years have been like, it's not a repetitive volunteer, the volunteer that have worked with us and have gone, these are the new set of volunteers across four Hmm. different cities. So this shows that people have that thing in them, they just need a platform. That platform is something that I wanted to create for myself, right? Gradually I have realized that आप बच्चों को तो पढ़ाओगे,
आप बच्चों को पढ़ा दोगे 3 घंटा 4 घंटा, but they are going back to their particular families, they are going back to their particular ecosystem where they are living. तो आप 4 घंटा किसी को पढ़ा के क्या चेंज ला सकते हैं? आपको अगर इम्पैक्ट करना है तो एक ग्रास रूट लेवल पे एक परमानेंट इम्पैक्ट करने की जरूरत है. इट विल टेक हार्ड वर्क, इट विल टेक टाइम, बट दैट इम्पैक्ट वुड बी परमानेंट. That is the time when I actually started working in rural areas. So all these years, if you ask me from past 10 to 12 years that I have worked in this particular genre, I have worked with children, I have worked for children, I have worked in rural areas, I worked with areas with fluoride, fluorosis in the water, in the other disease. I worked with toughest of the condition where resources are not accessible to people. But at the same time, coming back to your particular question, the corporate, that is a whole different part of the story. So apart from what my passion is towards social work, I am a professional in PR, and me and my friend Ujjwal, we actually run together a platform called the Daily Report, in which we actually give platform to people like us. The one thing that worked with me was media covered me at a very young age. It turned out to be a recognition. It turned out to be a motivation. एक social activist क्या सीख करता है? पैसा तो कहीं से मिलेगा नहीं, but एक recognition, एक motivation चाहिए. That turned out to be a motivation for me. It also helped me connect to million other people across country. So I want to be that particular catalyst among young Rahul Prasads around. That is the whole objective of starting a media, right? So yes. You know, many people do have this vision, but they do not have the courage to take this path. So that is commendable what you do, and I congratulate you on your grit that you continue on this path. So my second question to you is, what is exactly child abuse, and how do we sensitize our children regarding it when even the adults do not particularly understand what child abuse is? Okay, so Ishita, I come from a very practical knowledge. Okay, so whatever answers I'm going to give you today is not something that will be finding in Google. It will be something that will be actually very practically fit. Okay, so if you ask me child abuse kya hai, child abuse is something or anything which is happening against the will of a child. And if you are saying the child is not intelligent enough to make their own will, at the same time, it is the responsibility of an elder or somebody who is little elder than the particular person, than the child, to know that what the boundaries are and what the lines are. If you actually categorize it, it can be physical abuse, it can be verbal abuse, it can be sexual abuse, it can be psychological abuse, it can be financial abuse. So if you actually ask me, the second part of the question about that people are not sensitized, how can we actually protect our children? You can't. People have to be sensitized. The point is today is that people, activists today, are actually working towards children to actually tell them what is good touch and a bad touch. At the same time, it is very important for a person who is elder around them to realize that what is good touch and what is bad touch. Yeah, people don't know what that is. They don't know about that. Even if they know, they ignore it. Why? Because बच्चे का क्या है, वो किसको बोलेगा, right? बच्चे का क्या है? But if you actually look onto the real ground statistics today, I'll come to that in your incoming questions actually. But I'll just give you a brief that there is not a child who has not faced an abuse. And you tell me, abuse is not only sexual abuse. It's about anything that discomforts a child. आप क्लासरूम में बैठ के गांव में या फिर विलेजेस में एक टीचर लाठी से मार रहा है बच्चे को, वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है, but do you realize that what type of impact it is or what type of dent it is leaving on a child's psychology? आप गाली गलौज कर रहे हैं बच्चे के साथ या बच्चे के सामने भी, अगर दो लोग एक बच्चे के सामने भी गाली कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, that is also an abuse, because वो बच्चे के माइंडसेट पे, साइकोलॉजी पे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, you do not know. So coming back to your question, बच्चों को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक लिमिट तक, बट इट इज अ टू वे ऑपरेशन, एक वे ऑपरेशन नहीं, right? All right, okay. So my next question is something that you touched upon in your previous answer, that could you share some numbers to put it into perspective as to how rampant this problem is in India especially? There is no number that can justify it. You okay, tell any number, see, any number would be a government stat. Agreed? Yeah. And how valid or how justified is that government stat? Do we have a proof of that? कितने cases unreported हैं? Do we have a proof of that?
बट No. तो नंबर्स की अगर बात करें, आप गूगल खोल के देखिए, 2 out of every 3 चिल्ड्रन आर बीइंग, बट द Especially रियलिटी अलग female है. children, I believe. Yeah. बोथ, बोथ, इट्स बोथ. Okay. मेल Okay. भी है, फीमेल भी है, बोथ है. और हम लोग अभी सेक्सुअल अब्यूज की सिर्फ बात कर रहे हैं. वैसे तो अगर Hmm. आप अब्यूज की बात करें तो हर एक बच्चा हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे अब्यूज होता है, फेस करता है, बट उस Hmm. समय पता नहीं चल पाता है. वो बच्चा किसको बोलेगा, उसके पास कोई Hmm. नहीं है बोलने के लिए. और बड़ों को Hmm. नहीं मालूम है कि वो जाने अनजाने में भी अब्यूज कर रहे हैं. दे डू नॉट नो अबाउट इट. बट वो Hmm. सालों बाद वो डेंट निकल के आता है. अगर Hmm. आप सेक्सुअल अब्यूज की अकेले बात करें, देन इट्स नॉट ओनली द फीमेल चिल्ड्रन, इट्स अबाउट द मेल चिल्ड्रन एज वेल. वो लोग भी अब्यूज होते हैं. बट Hmm. द पॉइंट इज, कितने केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं? हाउ Hmm. मेनी केसेस आर डस्टेड अपॉन सेइंग कि शर्म, शर्म, लाइक आप इज्जत बचाना है, इज्जत चले जाएगी, इसको घर के अंदर. How many girl children in our country are still getting molested or still getting abused by their chachas or uncles? Hmm. Hmm. अगर That आप was इस what I was स्टैटिस्टिक को about to जाके say. देखो, हाँ कि if फैमिली you actually मेंबर्स go भी into the एक्चुअली अब्यूज statistics, करते हैं. आप True. स्टैटिस्टिक, इसका स्टैटिस्टिक आप कैसे एनालाइज करोगे? हाउ विल यू कैप्चुलेट द स्टैटिस्टिक ऑफ दैट? देयर इज नो स्टैटिस्टिक. वो लड़की अपने मम्मी को बोलती है, ऐसा नहीं है कि वो लड़की रीच आउट नहीं करती है. शी डज टेल हर मदर और हर एल्डर सिस्टर, बट परिवार की इज्जत को रख के दबा दिया जाता है. True. राइट. सो आप Okay. स्टैटिस्टिक की बात यहाँ नहीं कर सकते. रियलिटी यहाँ पे ये है कि एवरी डे अ चाइल्ड अंडरगोज एन अब्यूज इन आवर कंट्री. ये रियलिटी है. अब्यूज Hmm. अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा फेस करता है. yes. Okay. Okay. So my next question is that which group of children are the most vulnerable to abuse? See, talking about abuse, अगर आप sum up करो with all the age groups, अगर मान के चले with all the abuses, तो age group of between 9 to 15 is something which is very vulnerable to abuse. यहाँ पे आपको sexual abuse भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको physical abuse भी देखने को मिल सकता है, एक emotional और एक psychological abuse भी इस age में आपको देखने को मिल सकता है in the form of child labor और child trafficking. And if we come to socio-economic status, would you say that the children who are not very privileged in terms of say social status or economic status, वो ज़्यादा abuse होते हैं than the ones who are better off maybe? नहीं, मतलब एक Okay. लिमिट तक आप फिजिकल अब्यूज बात कर सकते हैं, आप फिजिकल और एक फाइनेंशियल और इमोशनल अब्यूज में वहां बात कर सकते हैं, बट सेक्सुअल अब्यूज डज नॉट सी एनी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस. Because Like अभी recently I would want. I have seen Hmm. clients who are from the richest of families who are still face the same thing in their particular child. Yes, there was this movie that came out of Alia Bhatt that also pertained a little about. I forgot the name. I think it Highway. had Ranveer Hooda and Alia Bhatt. It Highway. was. Yes, Highway. It talked about that she came from a very rich family, but she was abused. And one thing I wanted your perspective upon was the Muzaffarpur shelter case that happened a couple years back, if you remember. How can such a thing happen? It was, I think, a government-run shelter case. Are they not safeguards? मतलब वहां अगर ऐसा हो रहा है तो ओ माय गॉड, इट वाज अ वेरी But the घासली thing is, थिंग. वही बात है ना, आप वही I come down to your second question itself. अगर वहां पे हो रहा है, देन व्हाट हाँ. बेस्ट वी कैन डू विद चिल्ड्रन. ये तो फिर एल्डर्स की बात हो गई ना. सो ये सब साइकोलॉजी है इशिता. आपको साइकोलॉजी पे टारगेट करना है. व्हेन यू वर्क सोशल वर्क ना, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल सर्विस एंड सोशल वर्क. सोशल सर्विस क्या होता है ना, आप किसी को खाना खिला दो, वो सोशल सर्विस. बट सोशल वर्क इज समथिंग व्हेन यू डू एन इम्पैक्ट एंड मेक श्योर दैट द इम्पैक्ट इज सस्टेनेबल. वो मतलब आप किसी को बता रहे हो खाना कमाना कैसे, वो सोशल वर्क है. हम लोग को सोशल वर्क करने की जरूरत है. हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल सर्विस करके छोड़ दे रहे हैं. आप जा रहे हो, बच्चों को बता रहे हो गुड टच ये है, बैड टच ये है, बस आप भी खुश, आपने सोशल वर्क किया. नहीं, आपने सोशल सर्विस किया है. दैट इज अ वन डे इम्पैक्ट. अगर आप वहां पे बच्चों को तो बताओ ही, उसके अराउंड जो इकोसिस्टम है आप उसको भी अगर स्ट्रेंथन करते हो, वो होगा करेक्ट सोशल वर्क. ओके. Okay, okay. My next question would be, how should a child or a teenager actually reach out if they themselves are either subjected to abuse or they suspect that someone else is being, because they're usually not taken very seriously by the adults, especially in India. So how should they reach out to anyone, or who should they reach out to?
सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अगेन आई एम सेइंग इट्स अ टू वे प्रोसेस यार। मैं आपको इसमें दो केस स्टडी देता हूँ। पहला केस आपको देता हूँ मैं इस तरीके से कि एक, चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल अब्यूज का, लेट्स टॉक ओनली अबाउट फिजिकल अब्यूज राइट नाउ। इफ यू टॉक अबाउट अ 9 or 10 year old girl child who has been wrongly touched by her uncle, she would reach out to the mother. She would definitely reach out to the elder sister or mother. She would never keep it in her heart. बहुत कम ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि वो अंदर छोड़ देते, किसी को बोलते नहीं है। वो किसी ना किसी को तो रीच आउट करेंगे ही, और इधर इट इज हर बेस्ट फ्रेंड, किसी ना किसी को रीच आउट करेंगे एट दैट एज। बट द पॉइंट इज ना, यहाँ पे दैट इकोसिस्टम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एनफ। मदर शुड बी लाइक कि गलत है, मेरी बेटी है, मेरे फैमिली की इज्जत बाद में, पहले मेरी बेटी की इज्जत अपनी जरूरी है। ये जो चीज है ना, ये स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं आपको केस अगर दूं, अब देखो इशिता, जब एक लड़की मॉलेस्ट होती है, वो अपने फैमिली को बताती है, आई एम टॉकिंग करंट स्टेट, फैमिली को तो रीच आउट करेगी वो। अगर फैमिली को रीच आउट किया तो द मोमेंट शी वुड रीच आउट द फैमिली, व्हाट वुड फैमिली डू? फैमिली उनका बाहर निकलना बंद कर देगी, फैमिली उसका रिस्ट्रिक्शन काट देगी। उस डर से शी वुड नॉट रीच आउट टू फैमिली कि मैं मम्मी को बताऊंगी तो पापा को बता देंगी, और पापा मम्मी मेरा बाहर निकलना बंद कर देंगे, जो हो गया हो गया। बट डू यू रियलाइज दिस डेंट, ये डेंट कब आता है? ये डेंट सालों बाद निकल के आता है। सो ये ना एक टू वे प्रोसेस है। आप बच्चों को तो बता सकते हो कि गुड टच बैड टच ये है, बैड टच में आपको रीच आउट करना है, बट बच्चा भी तो सोचेगा ना कि मैं रीच आउट करूंगा तो क्या पता मेरे को थप्पड़ पड़ जाए, या मैं रीच आउट करूंगा तो क्या पता मेरा डिस्ट्रिक्शन खत्म हो ब्लेम करते हैं, राइट। और फैमिली को भी वहां पे समझना है कि आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन योर चाइल्ड। आपकी फैमिली की इज्जत बाद में आती है, इट इज योर फैमिली, फैमिली की इज्जत है। फैमिली जब स्ट्रांग नहीं है तो कैसी इज्जत? So who should be the तो target of education? Like if you want to educate somebody about child abuse, so should the child actually be the target or the parents, and the society should be the target? It has to be the parents, 80% has to be the parents. बिकॉज आप अगर आप पेरेंट्स को बता रहे हो ना, तो वो चाइल्ड ओरिएंटेड जो एजुकेशन है ना, वो पेरेंट्स खुद दे देंगे, एंड चाइल्ड विल लर्न बेटर फ्रॉम देम। लेकिन आप बच्चों को एजुकेशन देके खाली नहीं बैठ सकते। इट हैज टू बी अ टू वे प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स और स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डर्स इन द फैमिली। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So my next question is regarding children of migrant workers. They have some of the most unstable lives. You know, they move from one construction site to another. School is totally out of question, and child labor is a natural thing for them. So how do we help them to come out of this vicious cycle? Because migrant के बच्चे भी migrant workers ही बनेंगे, फिर उनके बच्चे भी migrant workers ही बनेंगे. That is, मतलब it's a perpetual cycle that is going to happen. So what should be done for them? See, one thing that we can do, हम लोग उनका लाइफ स्टाइल को तुरंत चेंज नहीं कर सकते। दिस इज ट्रू कि जब जेब में पैसा आता है, आदमी का लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है, तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट दो। ये बात सच है, ये एक साइकिल है, पैसा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये एक साइकिल है। बट एक्चुअल में अगर आपको सच बताओ, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है स्पेशली एट द ग्राउंड, एक लॉ का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। एंड दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ हैज टू हैपन विदाउट करप्शन टेकिंग प्लेस। ये जरूरी है। अब आप देखो, माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक्ट है या फिर जो भी लॉ है, उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर एक चीजें हैं, बट वैसे चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। चाइल्ड लेबर तो वैसे ही अलाउड नहीं। तो चाइल्ड लेबर अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको इतने साल का सजा है और इतना फाइन देना पड़ेगा, ये, और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये बात है, ये बात लीगल में है। बट फिर भी कैसे हो रहा है आप ये बताओ? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस या फिर जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एनफोर्समेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा वैसा देके सेटल हो जाता है। और क्यों पैसा देंगे? क्योंकि एक बच्चा, अगर जो बच्चे का दिहाड़ी होता है, वो बच्चे का दिहाड़ी होता है सपोज 400 रुपए महीने, 400 रुपए दिन का। एल्डर का दिहाड़ी है 800 रुपए दिन। तो उनको तो चीप लेबर मिल रहा है ना। एक अंडे की दुकान में बच्चा बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसको चीप लेबर मिल रहा है, काम वो उतना ही कर रहा है और उल्टा ज्यादा कर रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसको जो बोल रहा है वो कर रहा है। वहीं पे कोई बड़ा लड़का आएगा एज में, तो वो लिमिटेड रहेगा, मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना पैसा लूंगा। तो चीप लेबर मिल रहा है एम्प्लॉयर को। अब वो एम्प्लॉयर को पैसा बचाने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए, वो पुलिस को थोड़ा पैसा दे देते हैं। पुलिस वाला बोलते हैं कि फाइन, आप करो, डू वट एवर यू वांट। सो ये ना एक लीगल, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है लीगल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। उसके अलावा देयर इज नो वे अराउंड। बच्चा अगर आपको दिखता है काम करते हुए, पेरेंट तो लगाएगा ही बच्चे को, क्योंकि बच्चे से इनकम ज्यादा आ रहा है। लेकिन दे डोंट रियलाइज ना कि बच्चा अब्यूज हो रहा है। दे डोंट रियलाइज ना कि
वो हाथ पे जो काम करते करते मार्क पढ़ रहे हैं, वो साथ में दिल में डेंट पे भी पड़ रहा है दिल। सो पेरेंट तो इलिटरेट है, आप मान के चलो कि पेरेंट इज इलिटरेट एंड पेरेंट इज मनी माइंडेड, तो वहां पे एम्प्लॉयर को ही अलाउ नहीं करना है। और वो कैसे होगा? जब आप एक लीगल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करोगे, एंड एज अ यूथ आप उसके बारे में और विजिल ब्लो करोगे, आप उसके बारे में और शोर मचाओगे। आप किसी एक बच्चे को आइडेंटिफाई करते हो तो उसको आप ऐसा न्यूज बनाओ, उसके अराउंड आप ऐसा सोशल मीडिया में एक वॉइस या एक नॉइज बनाओ कि 10 लोग करने से पहले सोचे कि भैया बेइज्जती तो अब हो जाएगा अगर किसी ने ऐसा देख लिया। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्वेश्चन का एक एडेंडम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि चाइल्ड अब्यूज जब सोसाइटी करे या चाचा और ये लोग करें तो ठीक है, एक बात है, और बहुत बार होता है दैट पेरेंट्स आर अब्यूजिंग द चिल्ड्रन, and in countries like America and Western countries, we usually have the concept of emancipation from the parent itself. In India, we do not have any such thing. So, how do we understand if the parent is actually abusing the child, emotionally or physically? क्योंकि इंडिया में तो वो सारे कॉन्सेप्ट हैं कि बच्चे ने कुछ किया, चांटा लगा दिया, ठीक है, क्या हो गया, तो ऐसा तो पेरेंट्स का हक है। तो क्या ये भी अब्यूज में आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आता है, आ सकता नहीं, बिल्कुल आता है। उसका रीजन क्या है कि एज यू टोल्ड कि फॉरेन में अलग तरीके का लॉ है, मतलब पापा बच्चे को मार दे तो अलग सीन हो जाता है, वो बात सच है। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन रियलिटी क्या है ना, आपको एक चीज और समझना है कि हम लोग का, आपको थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि हम हाँ, लोग, जैसे कि सपोज आर डैड्स, अगर जैसे कि मैं अपने फादर का बात करूं, अगर आपके फादर का बात करूं, हम लोग के जो डैड्स है, दे हैव वर्कड क्वाइट हार्ड एक बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे और सिचुएशन में टू कम ओवर देयर, टू कम जहां पे अब हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना नॉलेज है कि भाई फॉरेन में ऐसा लॉ है, यहाँ पे ऐसा लॉ है, बट उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। गलती किया मारा, सिंपल चलता था उस समय। अपने पापा लोग की अगर बात करें, सो रियलिटी यहाँ पे ये है कि बदलते समय के साथ चीजें बदलती हैं, ये सच है। तो वहां पे आप कोई लॉ नहीं ला सकते यहाँ पे जस्ट बिकॉज एक फादर अपने बच्चे को मार रहा है। क्योंकि आप देखिए, आपको ना एक साइकोलॉजी को समझना जरूरी है बिफोर ब्रिंगिंग एनी लॉ इन पिक्चर। आप ऐसे कोई लॉ नहीं रख सकते कि भैया कल से एक फादर बच्चे को मारेगा तो मतलब जेल, ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नेवर डू दैट। बट एट द सेम टाइम एक फादर या फिर एक पेरेंट का ये बहुत जरूरी है समझना, एक बदलते समय के साथ बदलती चीजों को। अभी काफी चीजें हैं, अभी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे मतलब जिस चीज के लिए आप बच्चे को मार रहे हैं, वो बच्चा 10 चीजें वैसे ही अलग अलग तरीके से सीख सकता है। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, राइट? तो अब चीजें वैसी ही नहीं है, तो एक वहां पे जरूरी है एजुकेशन इम्पार्ट करना कि व्हाट आर द ऑल्टरनेट वेज। आप बच्चे को अगर सिखाना ही है, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा तारे जमीन पर, उसमें दर्शन सफारी को डिसलेक्सिया, तो उसके फादर किस तरीके से मतलब पहले अप्रोच करता है, बट वंस ही गोस थ्रू इट, वंस ही अंडरस्टैंड्स कि नहीं, इनको एक अलग तरीके से हैंडल करना है, दैट इज एजुकेशन। वो एजुकेशन आपको एल्डर्स में भी इम्पार्ट करना जरूरी है। सेम गोज विद सेक्सुअल अब्यूज एज, सेम गोज विद सेक्सुअल अब्यूज एज वेल, कि आपको मतलब एजुकेशन इम्पार्ट करना है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, वो बताना है आपको। और अगर हम बात करें सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम पेरेंट्स, यस, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट स्पोकन अबाउट। बहुत सारे क्लाइंट्स रहे हैं पास्ट में जो कि लाइक आई हैव अ वेरी क्लोज क्लाइंट ऑफ माइन हु वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय हर डैड। नाउ she did not have anyone to reach out to. She reached out to people like me. But the point is, it is important for people like us, when we know about this, we impart. हम लोग कुछ काम करें, we impact about it. We have a proof. हम लोग कुछ काम करें उस पर, बस सुन के शांत नहीं रहना है, सिंपैथी नहीं देना है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वो किसको रीच आउट करेंगे। और जब फैमिली कर रही है देन दे रीच आउट द नेक्स्ट क्लोज वंस, तो क्लोज वंस तो हम लोग हुए, तो हम लोग से डिस्कस करें, तो वी शुड इम्पैक्ट अबाउट इट, वी शुड वर्क ऑन Okay. Since you have worked in this area, I don't know this, therefore I want to ask you that is there any concept of financial abuse in India for children? देखिए, आई टच अपॉन इट ना कि मतलब बच्चों को जब एम्प्लॉय करते हैं काम पे, तो एक बहुत कम प्राइस पे एम्प्लॉय किया जाता है जो बच्चों को करते हैं, क्योंकि भाई वो सिंपल होता है ना, मतलब जैसे कि आपका हाफ टिकट फुल टिकट की बात है। जैसे कि आप ट्रेन में जाइए या कहीं पे भी, फुल टिकट 800 रुपये, हाफ टिकट 400 रुपये, सेम चीज आप उसमें देखो अगर रॉ में, कि बच्चों को जब आप एम्प्लॉय करते हो तब आप दिहाड़ी का 200 रुपये दे रहे हो, बोल रहे हो कि बच्चा है ना, काम भी तो छोटे छोटे हाथ है, कितना ही काम कर लेगा, ले 200 रुपये। पेरेंट भी ज्यादा पैसे के चक्कर में 200 रुपये में के लिए बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं। सो दैट इज द फाइनेंशियल अब्यूज। वो फाइनेंशियल अब्यूज है जो कि बच्चे फेस करते हैं। बट रियलिटी आपको मैं बताना चाहता हूँ
इट्स नॉट ओनली, हम बच्चों की बात कर रहे हैं राइट, सिर्फ बच्चे फेस नहीं करते फाइनेंशियल अब्यूज, उनकी उनके मदर फादर जो काम कर रहे हैं अगर वो भी बहुत एक लेवल तक फाइनेंशियल अब्यूज फेस करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, उनको उनके राइट्स के बारे में नहीं मालूम है। जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक्ट है उसके तहत दे आर अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस जहां पे आपको ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं आप गवर्नमेंट से, आपके एम्प्लॉयर से। 50/50 का एस्बेस्टस हुआ, बाथरूम का सेशन अलग होना चाहिए, 10 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, इतना आपका मिनिमम वेज होना चाहिए। दे डू नॉट नो अबाउट इट, वो लोग तो इजी क्विक मनी के चक्कर में आते हैं। सो जब पेरेंट ही अब्यूज हो रहा है तो बच्चा तो डेफिनेटली होगा ही। और अगर बच्चों की अब्यूज की बात करें, जो एक क्रेडिबल एम्प्लॉयर्स हैं उन लोग नहीं अब्यूज करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनका मालूम है उनके लॉ क्या है, उनका रेगुलेशन क्या है, बच्चा अलाउड नहीं है। वो तो कंस्ट्रक्शन साइट में भी बच्चा अलाउड नहीं है, अगर तो नहीं है, एम्प्लॉय तो दूर की बात। Okay, just as an extension to this question, because I want to understand this a little more. If a parent is not financially viable to actually take care of the child and is not being able to provide the basic necessities of childhood, will that be considered as financial abuse? No, That will not be फाइनेंशियल considered. अब्यूज दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल अब्यूज प्रैक्टिकली वो फाइनेंशियल अब्यूज नहीं है, बिकॉज वो एक, मैं तो बोलूंगा कि वो एक फेलियर ऑफ अ पेरेंट, कि भैया देखो आप पेरेंट हो, आप खाना तो खा रहे हो ना, और अगर आप खाना खा रहे हो तो कुछ तो पैसा कमा रहे हो, अब जीरो ही सही कुछ तो पैसा कमा रहे हो, तो आपकी द मोमेंट यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट प्लानिंग फाइनेंशियली फॉर द चाइल्ड। ये जरूरी है, ये इंडिया में होता है, तभी तो बोलते हैं ना, मतलब कि जब शादी के लिए बच्चे बचपन से पैसा जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जो पुरानी कहावत है। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आप बच्चों को पैदा मत करो। इफ यू आर नॉट हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल देन डोंट गिव बर्थ टू द चाइल्ड। बट because फाइनेंशियल अब्यूज में उस चीज को नहीं ला सकते बच्चों के पर्सपेक्टिव से। I have worked in my college days, and one thing that I've noticed is कि जो फीमेल बच्चियां होती हैं, families स्पेशली जो बहुत ही पिछले दर के इससे आते हैं, सोसाइटी से आते हैं, फीमेल चिल्ड्रन को दे डू नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एट ऑल। तो उनका खाना पीना भी वो ढंग से नहीं करते हैं। देन दीज फीमेल्स हैव सम पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ नीड्स, मेडिकल नीड्स एक्सेट्रा, ये सब बिल्कुल उनके पूरे नहीं किए जाते हैं। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव्स, जिनकी बस जल्द से जल्दी शादी कर दी जाए, दैट्स इट। सो दैट इज आल्सो सम काइंड ऑफ अब्यूज, इजंट इट? बट दैट इज नॉट देखिए बिल्कुल, फाइनेंशियल। बिल्कुल वो एक अब्यूज है। मैं तो बोलूंगा कि वो राइट्स का उल्लंघन है। यू आर टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, एंड द शेमफुल थिंग इज दैट यू आर टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ योर ओन चाइल्ड। ओके, इट इज या एन अब्यूज, बट फाइनेंशियल अब्यूज में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अब्यूज, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो बहुत सच बात है। आज भी विलेजेस में, स्लम्स में लड़कियों को बोलते हैं ना, पैरों की जूती की तरह कंसिडर किया जाता है। वो स्टेचर है उनका, एक लड़की दिखती है, वो स्कूल नहीं जा रही है, वो टायर के साथ खेल रही है, भाई स्कूल जाता है। ये डिस्पैरिटी है, ये गैप है। ये सारी चीजें काफी चीजों को रिजल्ट करती है। अगर आप रेप्स वगैरह के भी अगर ग्राउंड पे जाओ तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की बात करें, मैं रिसेंटली एक अक्यूज्ड से बात किया कुछ सालों पहले, व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन रेप्स, एंड ही टोल्ड वेरी क्लियरली, मैं दिल्ली में था, और ही टोल्ड वेरी क्लियरली कि वो लड़की घूंघट में नहीं है ना, इसकी वजह से उसके लिए इज्जत नहीं है, घूंघट में होगी तो इज्जत है। हम लोग के लिए हम लोग इलाज कर सकते हैं इस चीज में, बट आप देखो वो लड़का बचपन से अपनी माँ और अपनी बहन को घूंघट में देखता है, तो वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। दैट्स द इशू, दैट इज द अभी इशू। रिसेंटली बचपन से, एक, हाँ हाँ, बचपन से कुछ भी हो तो अपने माँ को मार खाते हुए देखता है अपने फादर से। तो मतलब मालूम है, जब मेरी माँ मार खा सकती है तो क्या है वुमेन, क्या चीज है वो जो चीजें है ना, यही छोटी छोटी चीजें, मैं यहाँ लाना नहीं चाहता हूँ ये पूरा सर्कल, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये एक क्रिमिनोलॉजी में जाती है फॉर पीपल हु एक्चुअली थिंक दैट वुमेन आर ऑब्जेक्ट, आर देयर टू ऑब्जेक्ट, राइट? सो और ये डेफिनेटली तो, अब्यूज में, बोलिए। हाँ हाँ, ये तो अभी आपने एक अक्यूज से बात किया, उसने कहा कि घूंघट नहीं पहना था इसलिए शी वाज इनवाइटिंग इट। आई थिंक अभी रिसेंटली बीजेपी के एक कर्नाटका एमएलए ने भी ये बात कही, इट इज द क्लोथिंग ऑफ अ वुमन दैट इज इनवाइटिंग सच डीड। सो ये तो बहुत ही शेमफुल है हमारी सोसाइटी में कि क्लोथिंग को और माइंडसेट को हम नहीं ब्लेम करते, बट क्लोथिंग को ब्लेम कर देते हैं। बट पता है भाई, है ना, वहां पे भी क्या है ना, वहां पे वी एज यूथ नीड टू बी इंटेलिजेंट यार। देखो हम लोग क्या है, देखो हम लोग जब गूगल खोलते हैं तो हम लोग को खराब चीजों के जाने के बाद भी ऑप्शन है, अच्छी चीजों के देखने का भी ऑप्शन है,
right? Things that would impact us negatively, we are exposed to them also. And things that would impact us positively, we would expose to them also. But we choose the positive. So it is important for youth today also to realize that what they should perceive. ऐसे कौन से सेगमेंट को उनको लेना है वो यूथ पे इंपॉर्टेंट करना डिसाइड, राइट? सो डेफिनेटली लोग कचरा तो बोलते रहेंगे, और जो लोग मतलब 50-60 साल के हैं, जो लोग का अभी तक 30-40 साल में कुछ नहीं हुआ, उन लोग का कुछ नहीं हो सकता बॉस। बट अब हम लोग की बारी है कि हम लोग परसीव करें कि भाई जो तुम बोल रहे हो गलत है, यू हैव टू क्वेश्चन। जो तुम बोल रहे हो गलत है, उनको सिखाना है, और अगर वो नहीं सीख रहे हैं इसी दौरान, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ दोस पीपल हु वुड लर्न, राइट? Okay, sorry, I digressed from our basic topic. No, please, I love it. Okay. Coming to the education part, you have worked a lot in the education area, especially pertaining to RTE. So, is RTE any useful? Because we have the ACER report by Pratham NGO, and it says that the gross enrollment ratio has gone up drastically. There is no doubt about that. Primary schools are filled with children, but the learning outcomes have not gone up. It has actually diminished quite a lot. The फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा प्रोबेबली एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो आरटी का फायदा क्या हुआ फिर? इज इट जस्ट कि किसी तरह स्कूल में बच्चों को भेजो एंड जस्ट डू नॉट केयर अबाउट द लर्निंग आउटकम? इज इट दैट? तो मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? ओके। व्हिच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी लिटरेसी परसेंट है? केरला, राइट? 98%। डू यू नो व्हिच इज द स्टेट, just do you know which is the state which is having the most unemployment rate in India? Please don't tell me this. Kerala. Is it Kerala? Oh my God, that is unexpected. उसका रीजन आपको समझना है। लिटरेसी इज नॉट इक्वल टू एडुकेशन। आप आरटीई में एक बस आप देखिए, आरटीई क्या है? आरटीई है कि भाई सबका हक है एडुकेशन। अंडर प्रिविलेज लोगों, अंडर प्रिविलेज बच्चों का, बच्चे जो बिलोंग करते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन से, उन लोग का भी हक है एडुकेशन। जैसे कि मैं डीपीएस से हूँ, जो दिल्ली में स्कूल है, उस समय ही एक 25% या 20% सीट एक प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में इज रिजर्व फॉर पीपल फ्रॉम दैट कैटेगरी। क्यों? ताकि आप इक्वल स्टेचर ऑफ एडुकेशन दो, बराबर? बट एट द सेम टाइम एडुकेशन इज नॉट इक्वल टू लिटरेसी। आप अगर बात करो, जो आपने स्टेटमेंट बोला, जो जीआरई का जो रिपोर्ट है, जो जीआरई का जो स्टैटिस्टिक है वो सही है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ा रहे हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग आप पढ़ा रहे हो कि भैया आपने एनरोल कर दिया, बच्चे ग्रेजुएट हो गए, आप भी खुश कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत मैंने इतने बच्चों को अंडर प्रिविलेज सेक्शन से पढ़ाया, आप भी खुश। बट द रियलिटी क्या है? क्या आप देख रहे हो कि बच्चा एजुकेशन इम्पार्ट कर पा रहा है? आपने जो उसको पढ़ाया है स्कूल में, तो बच्चा सिर्फ 7 घंटे रहता है, 6-7 घंटे रहता है। बाकी के जो 24 घंटे में जो बाकी घंटे, वो तो घर जा रहा है अपने। क्या उस चीज को वो ले पा रहा है वहां पे? क्या उसको स्कूल जैसा इकोसिस्टम नहीं, थोड़ा बहुत ही इकोसिस्टम मिल रहा है घर पे टू एक्चुअली मेक श्योर कि वो लर्न कर पा रहा है? सो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी। और इसके अलावा एक स्कैम भी रन करता है। स्कैम कैसे रन करता है भला? अब जैसे आपने मूवी देखा होगा हिंदी मीडियम, जिसमें इरफान खान तो स्कूल का ही, तो उसमें कैसे स्कैम रन करता है कि भैया गवर्नमेंट के तहत इतनी सीट्स हैं, लेकिन वो एक एक सीट बेची भी जाती है क्योंकि वो सीट अकाउंटेबल नहीं है। दैट सीट इज नॉट अकाउंटेबल। सो द पॉइंट इज ना कि एक स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, विथ अगेन लीगल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है, प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और एक ऑडिटिंग होनी बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग इन द सेंस नॉट फाइनेंशियल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब बच्चा जो पढ़ रहा है क्या वो सीख रहा है, ये जो है ना बहुत जरूरी। पढ़ना और सीखना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या आपको लगता है कि हम जो पैरामीटर बनाते हैं कि अगर बच्चा अपना नाम लिख पा रहा है तो दैट इज लिटरेसी, क्या ये एक्चुअली में चेंज करना चाहिए? बिकॉज ऐसे तो 76% इंडियंस आर लिटरेट, बट नहीं देखिए, बेसिक्स तो आपके लिए जरूरी है, बेसिक्स आपके लिए जरूरी है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि आप लिटरेसी पैरामीटर कहाँ देख रहे हो। अगर देखिए, अगर आप जैसे कि अगर आप बात करो somebody who is from an underprivileged background who wants to go into research, ठीक है? अब वो रिसर्च में जाना चाहता है, तो वो अपना एक लोकल लैंग्वेज या लोकल पैरामीटर को ही अपना एक स्ट्रॉन्ग रखेगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई भी रीजन, कोई भी लैंग्वेज हो, राइट? जहां से वो आ रहा है, आपने उसको पढ़ा के उसको ग्रेजुएट कर दिया स्कूल से, उसने बैचलर भी ज्वाइन कर लिया एक अंडर प्रिविलेज कोटा में, सब कुछ हो गया, रिजर्वेशन में चला गया, व्हाटएवर। बट द पॉइंट इज कि अगर आप उसको फिर पैरामीटर दे रहे हो कि वो अपना नाम लिख पा रहा है, भैया मतलब एडुकेटेड है, वो लिटरेट,
एडुकेटेड है कि नहीं है वो तो डिपेंड करता है उसकी नॉलेज पे ना। हम्म, अब आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बट दे आर वर्किंग गुड। तो ये कैसे काम कर रहा है फिर? इफ यू आर अ 10th or 12th drop out, if you are 9th or 10th drop out, and still you are actually able to make calls and do telecalling and earn 15,000 rupees per month, then what are you? Are you literate or are you educated? You are लिटरेट। educated. ओके, आई एम आप एडुकेटेड। एडुकेटेड हो। आप लिटरेट तब होगे जब आपको स्कूल का 10th 12th का डिग्री मिलेगा। आप एडुकेटेड बेसिकली। हो। एडुकेटेड हो एक पर्टिकुलर जॉनर में, आप एडुकेटेड हो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में। अब आप स्विमर ले लो, somebody who is a Olympian, somebody who is the best swimmer in the world. Does anybody care कि उसने बैचलर्स कहाँ से किया? Does anybody care कि उसने 11th 12th किया भी है कि नहीं किया? So the point is ना, education I believe, ये मेरा पर्सनल बिलीव है क्योंकि मैं भी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, मैं इस स्ट्रगल को फेस किया हूँ। I have actually been a college dropout myself for my passion of social work. So मैं उस पर्टिकुलर चीज को मैंने फेस किया है। That's why if I tell you, education is very skill and task oriented. This is what I believe. आपका पैशन ओरिएंटेड इज एजुकेशन। मेरा पैशन है सोशल वर्क करना, तो मेरे को सोशल वर्क के बारे में एंड टू एंड पता होना चाहिए। आई एम एडुकेटेड इन दैट डिसिप्लिन। बट लिटरेसी इज समथिंग जो कि इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं आता, बेसिक चीज। इंग्लिश पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, लोगों से एबीसीडी में बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और बेसिक चीज तुमको आता है कि नहीं आता टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। तो back to my basic question कि RTE do you think as an act it's adequate or should we add more to it, like we do again I told you, RT एक्ट, RT जैसा एक्ट है ना, ऐसे कुछ 2000 एक्ट्स हैं इंडिया में, 2000 डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, लॉ, बहुत सारे आपको रूल्स स्कीम्स मिलेंगे। बट व्हाट यू नीड टू ऐड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस that prevents corruption from happening, and a very strong auditing process to make sure that the whole purpose of introducing RTE is being sufficed. okay, okay, ठीक है। Okay, my next question to you is that हम सब किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर हमें IIT में पढ़ना है, हमें JNU में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन अगर हमें जब तक मौका मिल रहा है प्राइवेट एजुकेशन लेने का, हम में से कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, स्पेशली अगर हम जैसे बिहार जैसे स्टेट में। ऑफ कोर्स अगर हम दिल्ली में हैं तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि वहाँ के स्कूल्स आजकल मॉडल बने पड़े हैं, बट most of the states do not have good government schools. So why is this difference there? Does the government know about it and is it doing anything to address it? सर देखिए, आपको मैं एक स्कीम बताता हूँ, ठीक है। दिस इज लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए काफी अच्छा देखो। ये स्कीम है आयुष्मान भारत। क्या आयुष्मान भारत क्या है ना, अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल रियलाइज कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक जो इकोसिस्टम और जो एक स्फीयर है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो लोग डिजर्व कर सकते हैं 12,000 रुपए किराया दिन का प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो लोग तो डिजर्व, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट स्कीम ही लॉन्च कर दिया फॉर देयर हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस कवर करेगा। सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ एक तरीके से दोनों एरियाज को लेके आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट लोग मतलब कि रिच पीपल है, वो अभी सिमिलरली टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत बहुत खराब है, वी ऑल नो, ठीक है। उसका रीजन भी है खराब होने का, क्या रीजन है आपको वहां पे भी जानना जरूरी है। मैं वही बोलता हूँ, देखिए मैं साइकोलॉजी पर डील करता हूँ, मेरे को लगता है कि साइकोलॉजी समझना जरूरी है बिफोर एम्बिंग बैक एनीथिंग। गवर्नमेंट स्कूल का हालत क्यों खराब? क्योंकि जो वेजेस है, दोस वेजेस आर नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट अ प्राइवेट स्कूल टीचर अर्न्स, बट वर्किंग आवर्स ज्यादा है। द टाइप ऑफ एक इन्वायरमेंट है फॉर अ टीचर। देखिए स्कूल कैसे बनता है, स्कूल बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, टीचर्स से, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर और प्रिंसिपल अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप अच्छी आएगी ही आएगी। सो आपको वहां पे ये देखना है कि प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में करप्शन पॉसिबल ज्यादा नहीं है, जो कि गवर्नमेंट लेड करप्शन पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में डायरेक्ट करप्शन का उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है टू आर रिस्पेक्टिव फ्लैग बेयरर्स इन द मिनिस्ट्री और हूएवर। सो वहां पे क्या होता है, एक करप्शन जब होता है ना, मिड डे मील की अगर बात करें, खाना इतना गंदा क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्सिडाइज्ड क्वालिटी ऑफ राइस यूज किया जा रहा है।
20 रुपए किलो का राइस यूज किया जा रहा है 60 रुपए किलो की जगह, जबकि पैसा लिया गया है 60 रुपए किलो। 60 रुपए एग्जाम्पल सिमिलरली वैसे ही एजुकेशन में भी बातें आती है। वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी क्यों नहीं बना, पैसा लिया गया है लेकिन लाइब्रेरी इंपैक्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि किसको पता चलेगा? हु विल कंप्लेन? हीरा जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, वही उसको खाता है कि भैया मेरे साथ काम क्यों नहीं करता है। वो क्यों कंप्लेन करेगा? बच्चे कैसे जज कर पाएंगे कि उनको अच्छा मिल रहा है कि खराब मिल रहा है? उनके अराउंड जितने लोग हैं सब उनके वर्ग के लोग हैं। और टीचर्स क्यों कंप्लेन करेंगे? क्योंकि टीचर्स खुद फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें, तो जैसे मैंने आयुष्मान भारत बताया, एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स टू लेवल डाउन द पीपल फ्रॉम द पुअर एंड द रिच बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेम थिंग टू बी डन। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक या फिर स्कूल्स का मॉडल अच्छा क्यों है? क्योंकि उन्होंने वही किया है। उन्होंने बहुत आसान और बहुत प्यारे तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्वालिटी एजुकेशन को इक्वल कर दिया है गवर्नमेंट स्कूल से। तो अब कौन देगा 1.5 लाख रुपया फीस? दे आर हैप्पी, उन लोग खुश हैं। आप आरटी वहां पे जितना कर लो, आपको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लगेंगे नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। बट अक्रॉस स्टेट ऐसा नहीं है, अक्रॉस कंट्री वैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल माइट थिंक कि एजुकेशन एक बहुत जरूरी चीज है फॉर गेटिंग वोट्स, मान लिया जाए, चलो सही है, लेकिन सही बात भी तो है ना। अगर मेरा बच्चा आज एक जनरेशन में, एक फैमिली में जब एक बच्चा पढ़ लेता है तो पूरा एक जनरेशन सुधर जाता है। तो वो आदमी क्यों नहीं वोट करेगा? बट एक करप्शन का जो एक एरिया है ना, वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। मिड डे मील से लेके फ्री एजुकेशन तक, फ्री बुक्स तक, फ्री यूनिफॉर्म तक, हर जगह पे करप्शन होता है। ओके। तो इसी वजह से हम लोग उसको सुधार नहीं पा रहे। ओके। और जो अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, डू यू थिंक कि उसको यूज करके हम गवर्नमेंट स्कूल्स की इमेज को सुधार सकते हैं? कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करना ही होता तो हमें एनईपी का जरूरत भी क्या था? करना ही होता तो एनईपी का जरूरत क्या था? व्हाई डू वी नीड अ स्कीम? व्हाई डू वी नीड अ पॉलिसी? वी डोंट नीड अ पॉलिसी और स्कीम। द पॉइंट इज कि अगर एनईपी में हम ला रहे हैं और एनईपी के थ्रू अगर 3 या 4 स्टेट्स के स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, बट द सेम टाइम उनको फ्रंट रख के बाकी 10 या 15 स्कूल्स को अगर स्टेट्स के स्कूल्स को अगर कर दिया गया इग्नोर, तब क्या फायदा? दिखावे के लिए पॉलिसी नहीं चाहिए। आप समझिए, मैं वापस वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट पे डिपेंड मत करो। द पॉइंट इज गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑलरेडी हैं, बट क्यों नहीं आ पा रहे हैं हमारे तक? वो रेज करना जरूरी है। वी हैव टू रेज आवर वॉइस फॉर दैट कि मेरा बच्चा डिजर्व करता है वो फ्री यूनिफॉर्म और एक अच्छा मिड डे मील, क्यों नहीं मिल पा रहा है? व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, वहां पे बातें बदल जाएंगी। अभी सोचते नहीं है, अभी उनको क्या है, बच्चा स्कूल जा रहा है काफी है। वो सोच जरूरी है। दैट सोच हैज टू हैव द साइकोलॉजी। Okay. We have a question from Shubham, that do political parties include improvement of government health infrastructure and education infrastructure as a part of their manifestos? And if they do people understand what it is? देखिए, मैं आपको जैसे किनका सवाल है ये? शुभम, one from the audience. शुभम, तो शुभम, मैं जैसे कि आपको एक चीज बताओ कि डेफिनेटली एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये कुछ कुछ चीजें हैं ना जो पैरामीटर्स हैं, ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स एक्चुअल में वोट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझिए, साइकोलॉजी समझिए कि एक रोटी कपड़ा मकान की जब बात होती है, जब आप किसी को रोटी कपड़ा मकान प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप क्यों प्रॉमिस कर रहे हो? क्योंकि उसके नेसेसिटी वो है। बट रोटी कपड़ा मकान आदमी खुद कैसे कमा सकता है? जब एक बच्चा एडुकेट हो जाता है, एक मेंबर ऑफ फैमिली का एडुकेट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो लोग इंक्लूड करते हैं। they include that in their particular manifestos, but कितना यूज हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, वो तो आपको पता ही है। बट अगर मैं बात करूं, देखिए, मैं अगेन आई एम नॉट patronizing myself with one particular political party, but अगर हम एजुकेशन मॉडल ऑफ दिल्ली लें, तो आपके पास सैंपल है। आप आज मैं जैसे बैंगलोर में हूँ, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, तो यहाँ पे द वॉलंटियर्स एंड द फ्लैग बेयरर्स ऑफ आम आदमी पार्टी शो पिक्चर्स ऑफ स्कूल ऑफ दिल्ली and tell people कि ऐसा स्कूल बना देंगे। तो एक सैंपल है, यू हैव अ सैंपल टू काउंट ऑन। तो जनता जो है ना, दे हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट।
जनता यहाँ पे एक प्रूफ चाहती है, एक सैम्पलिंग चाहती है। जब आप सैंपल देते हैं आदमी का ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि धोखा देने वाले बहुत लोग आके जा चुके हैं। तो डेफिनेटली वो लोग मैनिफेस्टो में इंक्लूड करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों के बारे में इंक्लूड होता है मैनिफेस्टोज में। एंड डेफिनेटली इट इज टू ड्राइव पीपल्स अटेंशन, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एक फैमिली में। बट जीतने के बाद कब कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो तो हम सब जानते Okay. ठीक है. Any more questions from the audience do we have? Okay, the audience is commenting, but no questions as yet. Are there any same a question another again from Shubham, that are there any policies for uplifting government schools? हैं। आर देयर एनी? Policies for uplifting government schools. Yes, there are policies for uplifting government schools. There are policies. I'm not actually aware of standard policies. जो policies हैं government school की specifically, so I won't quote them. But definitely policies हैं for uplifting government schools. Because उनको ये मालूम है ना कि उनका main vote bank कहाँ पे आता है. उनका main vote bank actually आ रहा है और from India में अगर जब MP election होता है तो the main vote bank आ रहा है that happens from 60% plus rural education, जो rural area है. इंडिया में 60% प्लस ज्यादा, 60% से ज्यादा रूरल एरिया है अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू द इनकम एंड सोशल डिस्पैरिटी। तो डेफिनेटली वहां पे स्कूलिंग को लेके एक मैनिफेस्टो डिजाइन होता है और पॉलिसीज बनती हैं। अब कितनी पॉलिसीज काम करती हैं कितने पॉलिसीज काम नहीं करती हैं डिपेंड्स यार। कभी कभी क्या होता है लोग दिखावे के लिए भी पॉलिसीज काम करते हैं, कभी कभी एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंसी में पॉलिसीज काम होती है। जैसे कि अगर बात करें मैं अगर बात करूं जैसे जमुई बिहार में है, उनकी जो एमएलए है श्रेयसी, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड वो मतलब शी एक्चुअली वर्किंग। वो दिखता है कि आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आप मतलब आप एक्चुअली हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप पॉलिसी जो आपने बताया है आप उनको यूज करके एक्चुअल में कुछ चेंज ला रहे हो, तो दिख जाता है। काफी लोग करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं, बट द होल पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि आप ब्लेम करो। द पॉइंट इज कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करें, व्हाई आरंट यू रेजिंग डाउन द क्वेश्चन। अगर मैं एक जगह देख रहा हूँ कि मिड डे मील गंदा मिल रहा है बच्चों को, so ये मेरा फेलियर है बिकॉज आई हैव दैट पर्टिकुलर कनेक्ट एंड आई हैव दैट पर्टिकुलर मैच्योरिटी टू रेज अ क्वेश्चन। उन लोगों को नहीं मालूम वो क्या खा रहे हैं, मेरे को तो मालूम है ना कि भाई सही क्या गलत क्या है। सो पूरा का पूरा गलती ना एक टाइम के बाद ना यूथ पे आके गिरेगा। ओके ओके, मैं एक क्वेश्चन आपसे पर्सनली पूछना चाहती थी कि जो पेडागोगी होती है, जैसे मैं सीबीएसई एडुकेटेड हूँ और डेफिनेटली अगर एक गांव में कोई सीबीएसई स्कूल है तो उसका भी पेडागोगी सेम होना है, तो क्या हमें एक्चुअली एक डिफरेंस लाना चाहिए? क्योंकि मैंने भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम पढ़ी, वो वहां भी उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम पढ़ा रहे, बट टू मी आई माइट बी एबल टू यूज इट इन फ्यूचर, बट दैट चाइल्ड विल नेवर बी एबल टू यूज। तो क्या हमें पेडागोगी में डिफरेंस लाना चाहिए बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ दोस चिल्ड्रन? But why do you feel that the child would never be able to use it? Because probably in later life he will not be having the same opportunities. जब तक हमें क्या उनके, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या उनके पेडागोगी में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग ज्यादा डालनी चाहिए इन अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एजुकेशन दैट वी गेट? I think I'm being able to translate my नहीं नहीं question नहीं, well. तो वो अप्रोच गलत होगा। देखिए वहां पे हो सकता है कि देयर विल बी 10 पीपल हु विल एक्चुअली साइड विद यू, बट अगर आप मेरे से पूछो तो दैट अप्रोच इज रॉन्ग। क्योंकि आप फिर तो इनइक्वालिटी आप बचपन से दिखा दिए, ओके, आप इनइक्वालिटी तो बचपन से दिखा दिए। तो नहीं मेरा मेरा क्या है ना, इनइक्वालिटी दिखाने का पॉइंट नहीं है, मतलब पर्पस नहीं है, बट ये पर्पस है कि प्रोबेबली वो बच्चा आगे जाके एक वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ बेटर अपना फ्यूचर ये कर पाएगा, कर सकता क्योंकि है, टर्शियरी कर सकता है, एजुकेशन आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मोस्ट पीपल इन दी रूरल एरियाज, कर सकता बट है, अ डेफिनेटली वोकेशनल। कर सकता है। बट दैट वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी द प्राइमरी, कैन बी द सेकेंडरी, बट दैट कैन नॉट बी द प्राइमरी। प्राइमरी तो आपको सबको इक्वल एक चांस देना है। हम्म आपको एक, अगर अगर आप इक्वल चांस नहीं दे रहे हैं देन व्हाट इज द यूज ऑफ आरटी। हम्म तो प्राइमरी तो आपको एक इक्वल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम अगर मैंने पढ़ा है तो सामने वाला भी पढ़े, उसको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहीं जाता नहीं है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। बट हम्म डेफिनेटली उसके साथ साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का एक पर्टिकुलर एडिशन या सेशन उनके साथ करना चाहिए, जस्ट टू एन एड ऑन स्किल, डेफिनेटली व्हाई नॉट। बट ओके, एक प्राइमरी अगर बात करें तो एक एजुकेशन के हर एक लेवल्स हैव टू बी वेरी इक्वल एट अ वेरी यंग एज। ओके, ठीक है। So my last question for you is that what is your suggestion for the youth?
and what tangible steps they can take so that they can make a meaningful difference to the society? देखिए, अभी ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये शुभम ने जैसे अभी लिखा है कि हाउ कैन द न्यू जनरेशन रेज द वॉइस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एजुकेशन। मैं इसको थोड़ा सा क्लब करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी यूथ की अगर बात करें ना, या फिर शुभम की भाषा में, या फिर शुभम है किसने लिखा है एक्चुअली, शुभम, शुभम की भाषा में न्यू जनरेशन की बात करें, सो द पॉइंट इज कि जो यूथ है, यूथ को ये चीज समझना जरूरी है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। आप आज बोलते ना कर्मा, सेम चीज। आप आज अगर एक सोशल इशू को इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उस सोशल इशू में रहेंगे, हो सकता है आपका डिफरेंट इशू रहेगा, बट आप भी वैसा हेल्पलेस फील कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, यूथ के पास, स्पेशली पीपल लाइक अस हु बिलोंग फ्रॉम अर्बन एरियाज, वी हैव अ डिसीजन टू नो what is right and what is wrong. We have that maturity or that particular exposure जिससे हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। There are people today are social issues जो बच्चे फेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम। आप अगर किसी को बोलो डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है, आप उस लेडी को बोलो कि तुम्हारे ये राइट्स है, वो पहले डरेगी, लेकिन जब वो देखेगी कि 4-5 और औरतें उसके साथ खड़ी है, वो कभी नहीं डरेगी। टीम बनेगा ना वहां पे। बट उसको बताएगा कौन? वो बताने वाले पीपल लाइक अस है, who knows things. The whole point is we have to raise question. हमें बचपन से सिखाया गया है कि भैया ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बिल्कुल सही, अच्छा एजुकेशन, अच्छा लिटरेसी। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तब यूथ शुड रेज क्वेश्चंस। जिस दिन हम लोग वोकल हो जाएंगे ना, व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आई थिंक हम लोग आधे डेवलपमेंट की तरफ शुरू हो जाएंगे। वी डू नॉट आस्क क्वेश्चन, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपने बताया, आपने जो एग्जांपल दिया था कि किसका तो आपने एग्जांपल दिया था बहुत इंटरेस्टिंग, कि पॉलिटिशियन ने बोला कि लड़की कपड़े छोटे पहने। तो भाई यूथ क्या कर रहा है? यूथ बोल रहा है कि भाई इतने बड़े आदमी ने बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही। 10 लोग बोल रहे हैं सही बोला, सही बोला, उसमें से अगर एक आदमी बोल दे कि ऐसा क्यों, वही चाहिए। द होल पॉइंट इज वी नीड टू रेज क्वेश्चंस। हम लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक यूज कर रहे हैं, गलत नहीं है, अच्छी चीज है वो। आप बोलो ना, 10 लोग बोलेंगे टेक्नोलॉजी खराब हो गया है, टेक्नोलॉजी ने सब खराब कर दिया। नहीं, टेक्नोलॉजी लोगों को दूर ले गई है एक दूसरे के साथ, बट बहुत अपडेटेड रखने लग गई है। मैं आज अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ या फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ, मेरा जीके वहां थोड़ा बहुत बन जाता है अपने आप, क्योंकि इतने सारे मीडिया के लोग मैंने पेजेस फॉलो कर रखे हैं ना, कुछ ना कुछ वो शेयर करते रहते हैं। द पॉइंट इज वी नीड टू नो हाउ टू यूज इट। बहुत कितना आप कुछ भी इशू देखो, आप उसको स्क्रीन करो, आप उसको शूट करो, आप उसको शूट करके अपने अपने प्रोफाइल में डालो। देयर विल बी पीपल लाइक राहुल प्रसाद आउट देयर, जो कि शुरुआत किया है एक प्लेटफॉर्म और जानता नहीं था कि पीपल लाइक हिम आर देयर, बट बाद में क्या हुआ, ही गॉट टू नो दैट पीपल आर लाइक हिम। सबको वो प्लेटफॉर्म चाहिए। सिमिलरली देयर विल बी पीपल लाइक इशिता। इशिता एक सोशल इशू देखती है, उसको शूट करती है, प्रोफाइल में डालती है। देयर विल बी पीपल लाइक इशिता जो कि उसको शेयर करेंगे। द पॉइंट इज वी नीड टू ट्रस्ट our community, that people are there if we actually stand up, because सही में लोग हैं, डरने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपका साथ देने वाले लोग हैं। हम लोग एज अ यूथ ना क्या सोचते हैं, कुछ इशू है, अरे कौन पड़े झमेले। वहां प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप रियलाइज नहीं करते दिस कैन हैपन विद यू आल्सो। बट द We are so पॉइंट इज insulated लेट्स नॉट from थिंक these अबाउट, things. We लेट्स feel नॉट थिंक distant. अबाउट नेगेटिवली सोचें। बट द पॉइंट इज आप लिटरेट हो, आप मैच्योर्ड हो, आप एक जगह देखते हो कि लड़की या अब एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको मालूम है कि आपको कौन सा नंबर डायल करना है। वहां पे लोग रहेंगे जो सेल्फी खींचेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे। पॉइंट इज आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूथ इज बी वोकल, बी वोकल एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप किसी भी खराब चीज क्या आप किसी भी सोशल इशू के लिए अगर खड़े होते हो, यू वुड नेवर बी अलोन। एंड अगर आपको फिर भी नहीं मिलते लोग, this is my Instagram handle, ping me, I'll be there, and people like me are there, who will be there, because we need people जो कि reach out करके issues लाएं। हम लोग को नहीं मिल पाता है, आपको मिलेगा। That's Shubham all from again the has a youth. question. How do we question those in power, especially as a individual voice? कैसे हम क्वेश्चन करें पावर में जो है उनको?
देखिए बिल्कुल, आपको पावर में क्वेश्चन करना है तो आप डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि भैया हम क्वेश्चन करेंगे तो बिजली कट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। whenever Failure you is difficult have to become. whenever you have any issue and you are frightened about people in power, don't think, आपका क्वेश्चन ही गलत है। how do you question people in power? They are in power because they are answerable to you. Hmm. वो पावर में इसलिए बैठे हैं, उनको पावर में डालने वाले आप हैं। यू आर द वंस हु हैव पुट देम ऑन पावर। क्यों? अब अरे भाई, मैंने एक गवर्नमेंट इलेक्ट किया है, तो मेरा हक है ना भाई रीच आउट करने का। द पॉइंट इज यू शुड हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। क्वेश्चनिंग बात की बात है। आपको जिस दिन अपने पे ट्रस्ट हो जाएगा शुभम, कि शुभम के थ्रू अगर बाकी लोग भी इस चीज को सुना तो नॉट स्पेसिफिकली हिम, कि अगर आपको जिस दिन अपने पे ट्रस्ट हो जाएगा दैट यू कैन बी वोकल अबाउट एन इशू, और आप एक इशू का साथ नहीं छोड़ोगे एंड तक, तब अपने आप किसी को भी पावर करना शुरू कर दोगे। भाई वो कपिल शर्मा नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिया, समझ रहे हैं? तो आप पावर का तो आप टेंशन मत लीजिए, एकदम मत सोचिए। Okay, okay. So, thank you, Rahul. It was very wonderful talking to you. And It was indeed a pleasure. Thank you for reaching out, and wish you all the best to Wong and Orion Square. And I'll keep on following your particular page, and glad to have you and your organization as a part of my network. yes, sure. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night.